میرے دوستوں، عزیزوں، جیزس لنک کے سننے والوں، الفریڈ گیل آدمی نیو یارک سے آج کی سچی اور اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا شو میرا ہے 552 اور شو کا ٹاپک ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ شو کا ٹاپک ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور یہ حوالہ ہے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 14 باب۔ یوحنا رسول کی انجیل، اس کی 14 باب، اس کی 3 آیت سے لے کر 7 آیات تک پڑھوں گا۔ اور یوں لکھا ہے، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر اپنے ساتھ لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم راہ جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، ہائے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ تو یسوع نے ان سے کہا، یہی میرا ٹاپک ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور یہی میرا ٹاپک ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند اپنی بڑی برکت بخشے، آمین۔ تو اپنا شو جو باقاعدہ ہے وہ میں شروع کرتا ہوں، اور شو کا ٹاپک تو پتا ہے، شو میرا آج کا 552۔ اور سب سے پہلے ایک بات پڑھوں گا۔ الیاس نے ایک خوبصورت پوسٹ ڈالی، اس میں لکھا کہ آپ آگے امن نہیں ہوگا، اب آگے امن نہیں ہوگا، حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ مصیبتوں کے آغاز کی بنیاد ہے، مصیبتیں آغاز کی بنیاد ہے۔ فرمان بائبل، جاگو اور دعا کرو۔ اور یہ جو انہوں نے بات لکھی ہے، جاگو اور دعا کرو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں متی رسول کی انجیل، اس کا 26 باب اور اس کی 4 آیت میں یہ مرقوم ہے۔ اور ہمیں ہر حال میں دنیاوی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی جاگنا ہوگا، اور جب تک ہم جاگیں گے نہیں، اگر ہم سوتے رہیں گے تو پھر ہم اس راہ پر نہیں چل سکتے جو خداوند کہہ رہا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور اس کی ان باتوں پر ہمیں عمل کر کے پھر ہی جو باتیں اس نے ہمیں راہ، حق اور زندگی کی بتائی ہیں تب بھی ہم چل سکتے ہیں۔ کیونکہ جب توما نے اس سے سوال کیا تھا کہ ہم نہیں جانتے، اور بالکل ان کو نہیں، بھلے اس کے ساتھ انہوں نے زندگی جتنی بھی تھوڑی بہت زندگی تھی وہ گزاری، لیکن حقیقت میں وہ ان کو بھی اس وقت تک نہیں جانتے تھے۔ وہ اس کے معجزے بھی دیکھے، اس کی ساری چیزیں دیکھی، ایک ایک چیز ان کے سامنے، لیکن پھر بھی ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں اس کا ٹھکانا ہے۔ تو اس لیے توما نے اس سے سوال کیا کہ ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا تھا کہ میں جہاں جاتا ہوں وہ جگہ تم جانتے ہو، اور راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اور ہمارے پاس، ان کے پاس تو منہ کی باتیں تھی جو خدا یسوع مسیح ان کے سامنے کہتا تھا، لیکن ہمارے پاس تو ساری زندگی کا کلام، ضابطہ حیات جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں دے دیا، اور خدا کی باتیں ہمارے پاس ہے، اور ہم ان باتوں پر چل کر جو اس کے منہ کی بات ہے
کہ राह हक और जिंदगी मैं हूं, तो फिर हम उसकी सारी बातों पर अमल करते हुए राह हक और जिंदगी की बातों पर हम चल सकते हैं। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे और इन बाइबल मुकद्दस की बातों पर अमल करना, इसको पढ़ना सीखे तो जरूर हम उसकी राह पर चल सकते हैं और हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां वो कह रहा है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। आखिर में यह हवाला पढ़ूंगा। उसके बाद टीना विलियम की एक पोस्ट है, लिखती है कि आंख दुनिया की हर चीज देखती है। बिल्कुल सही पोस्ट है। आंख दुनिया की हर एक चीज देखती है। जब आंख के अंदर कोई चीज चली जाए तो उसे नहीं देखती। बिल्कुल, जब हमारी आंख के अंदर कुछ चीज चली जाए तो हम नहीं, लेकिन दूसरों की आंखों की तरफ तो हम देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब देखता है। बिल्कुल सच्ची बात है और अच्छी बात है, और यही मेरा शो है, सच्ची और अच्छी बातों का। और दूसरों के ऐब तो देखते हैं पर अपने ऐब नजर नहीं आते। मैं जो ऐब करता हूं, मैं दूसरों को जो गुनाह है, गलतियां हैं, ऐब है, मैं उनका तस्करा करूंगा, लेकिन जो कुछ मैं कर रहा हूं वो मैं नहीं तस्करा करता। हालांकि न दुनिया भी देखती भी है, लेकिन अगर दुनिया से वो छुप चुकी है या ऐप छुपे हैं या नहीं भी देखते, लेकिन वो खुदा जो कह रहा है कि राह हक और जिंदगी मैं हूं, जिस पर हमें उसकी बातों पर चलकर वहां तक पहुंचना है, वो हमारी एक एक ऐप को देख रहा है, हमारी एक एक बात को समझ रहा है, हमारी एक एक बात को जो भी हम मुंह से निकाल रहे हैं वो देख रहा है और समझ रहा है। और वो राह जो हमने उसने दे दी है, ये हमारा काम है कि हमने उस पर चलना है। शाजिया कफीर इंसान फलसफों, नजरियों और अकीदों तले दब चुका है। अब इंसान को सुख का सांस चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है कि इंसान के सामने इतना कुछ बताया जा रहा है, इतना कुछ कहा जा रहा है कि उसकी समझ से बाहर है। बिल्कुल ये मैं सच बात कहता हूं और बिल्कुल उसकी समझ से बाहर। लेकिन मैं एक बात आपको कहता हूं कि आप इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ो। अगर मैं या सारे लोग मैं देख रहा हूं वो बाइबल को पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे क्या है, वो अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं कि मुझे बाइबल आती है, मैं जो कुछ करता हूं वो ठीक करता हूं, लेकिन वो इस बात को भूल गए हैं कि जिसकी ये मुंह की बातें हैं वो सच्चा है कि हम सच्चे हैं, लेकिन जो मर्जी हम कर रहे हैं सच्चा वही है, खुदा का बेटा है और वही राह हक और जिंदगी है। मैं एक बात और आपको कहूंगा, ये आपकी मर्जी की बात है, मैं किसी पर कोई बात मत जो वो नहीं कहता कि ये मेरी बात मान के करो, क्योंकि अगर खुदा की बातें नहीं मानती तो मैं और मेरे जैसे और कितने कमजोर आदमी हैं, उनको कौन सुनता है। लेकिन आप जैसे स्कूलों में पढ़े, आपने अमली तालीम हासिल की, एजुकेशन हासिल की, बहुत कुछ आपने सीखा, इसी तरह जब आप उस्तादों से सीखे हैं, और ये तो उस्तादों का कलाम है, खुदा बाप और आप इसको खुद पढ़ें और खुद अमल करें, फिर आपको हकीकत का पता चलेगा कि क्या कोई कह रहा है कि जो खुदा का कलाम है, जो हक और जिंदगी है, हमने खुद पढ़ना है। दूसरे जो मर्जी करते रहे वो ठीक है, बुरा काम नहीं कर रहे, लेकिन अब अगर 100 बंदे में से 90 बंदे सिर्फ पाकलाम नहीं पढ़ते जाएंगे तो दूसरे दुनिया के काम जो मसीही तालीम और तरबियत के काम है वो किधर जाएंगे। उनकी तरफ भी हमने तवज्जो, मैं उनके खिलाफ नहीं, लेकिन मेरी जो सच्ची और अच्छी बातें हैं
मैं सबसे जो ज्यादा बोलता हूं कि नौजवान मसीह नौजवानों को आगे आने दे दूसरे कामों में, तालीम, दूसरी एजुकेशन, इंजीनियर, डॉक्टर और कुछ बनने दे, क्योंकि सारे पादरी नहीं बनने में हर शो में कहता हूं, क्योंकि पादरी बनने से सारी कौम नहीं बनेगी और बहुत कुछ चाहिए हमने करने के लिए। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, नासर रजा साहब ने एक पोस्ट लिखी है, एक ही खानदान के मसीही टीवी चैनलों के मालकान, और ये जो चैनल और ये सारा कुछ कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? चंदे तो लोगों से लेते हैं, और यही इसमें लिखा है कि एक ही खानदान के मसीही टीवी चैनलों के मालकान गरीब अवाम की दैयकियों, शुक्रगुजारियों, चंदों से अपनी नस्लों को संवारने वाले इजी पैसा जाज जाज जो है जाज का वगैरह से माली मदद लेने वालों, जिन लाखों लोगों की माली मदद ना मिल सकी, उन एहसासात और जज्बात को मजरूर ना करे। और मैं हैरान हुआ कि चलो चर्च बंद हो गए, प्रोग्राम, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हो गया कि चंदा तो चल रहा है, हम शोर भी कर रहे, दुनिया भी बोल रही, मैं भी, तो कोई ना कोई हम ऐसे तरीके निकालते हैं कि हम कोई भी बड़े से बड़ी बात पाकिस्तान में कानून बना दे, हम उसके लिए कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं। चलो जी आपने कानून बना लिया, कोई बात नहीं, हम अपने लिए दूसरा रास्ता। और यही हुआ कि चंदे चलो बंद है, तो आप अपनी कलीसिया को कह कह के चंदे, जो इजी पैसा है, वो जास जो है, वो उसके जरिए आप अपना चंदा वसूल कर रहे हैं। और गरीब आदमियों, वो जो कुछ भी नहीं, वो भूखा मर रहा है। अगर आपको दैयकी आपकी जेब के लिए नहीं, आप पुराने अहदनामे में पढ़े न, वो खुदा के घर के लिए, और खुदा के घर में दैयकी दी जाती कि जब कोई मुश्किल वक्त है आपके लोगों पर, खुदा के लोगों पर, आपकी कलीसिया पर, उनकी भी मदद की जाए। जैसे ज़कात और ये सारी चीजें हमारे मुस्लिम भाई करते हैं, एक्चुअली वो भी यही चीज है कि मुश्किल हालात में गरीब लोगों को, लेकिन वो भी लोगों तक नहीं पहुंचता, वो भी बड़े लोग ही खा जाते हैं, और यही हमारे साथ चल रहा है। तो इसलिए हमें इंसाफ करना चाहिए गरीबों के साथ। तो ये एक्चुअली पोस्ट है नासर रजा, सीनियर सहाफी और समाजी कारकुन, बहुत अच्छा लिखते हैं और सही लिखते हैं। उसके बाद बहुत अच्छी पोस्ट, अमेरिका का बड़ा ऐलान, अमेरिका का बड़ा ऐलान, न्यूयॉर्क में 5 लाख मुसलमानों को रमजान में मुफ्त, आगे देखे, मुफ्त हलाल खाना फराहम किया जाएगा। और यह होती है गुड गवर्नेंस। शाज, मेरा तलफ़्फ़ुज़ कभी कभी नहीं ठीक होता, शाजिया कफील ने, और बिल्कुल ठीक बात है, मैं कल देख रहा था, फ्रांस ने, जर्मनी ने हर साल करते हैं, तो उन्होंने जो अपने फूड के या ग्रोसरी के जो रेट हैं वो रिड्यूस कर दिए, कम कर दिए, इसलिए कि मुसलमान भाई जो रोजे रखते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, सस्ते से सस्ता उनको फूड मिले, हर चीज, और वो मिल रहा है। लेकिन हम जो हमारे मुल्क में है, जो इस्लामी मुल्क है, वहां हम लड़ रहे हैं कि लॉकडाउन खोलो, हमारा कारोबार बंद हो रहा है, हम ताकि वो इसलिए जोर दे रहे कि रोजों में ही तो वो डबल प्रॉफिट कमाते हैं, और फिर भी कमाया जा रहा है, महंगाई शुरू हो गई, तो फिर हम क्या है? तो इसका मतलब है वो काफर जो कि फिर भी जिनको हम काफिर कहते हैं वो भला कर रहे हैं। और न्यूयॉर्क इस वक्त सबसे ज्यादा जो ये कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन वो साथ साथ वो उससे भी लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का भी वो ख्याल कर रहे हैं कि इनके रोजे हैं। जाज़म आइजक साहब का ये पूरा पेज उन्हीं का कलाम का, उन्होंने लिखा है पंजाबी 2 शेर, एक मकसद सी अखियां गे मुक्ति देवन वाले दा, कि जिन्ने सानू मुक्ति दिती है, जिन्ने साडी जान बचाई, जिन्ने साडे गुनाह माफ कीते, कौन है?
راہ हक और जिंदगी वो खुदाम यीशु मसीह है। तो ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਜਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹ क्यों असूलियत जान देती, क्यों खुदा ने सारा प्लान में सानू शक्ति देने लई, सानू नजात देने लई, सानू बख्शण वास्ते की याद करा, केड़ी केड़ी गल यीशु मसीह दी याद करा, की याद करा जाजम उस दी शान फजीलत दा, कि मैं ओदी शान फजीलत ओदे वास्ते केड़ी केड़ी ओदी तारीफ करा, केड़ी ओदी गल करा। औगन हारिया नू सच्ची भक्ति देवन वाले दा, और सानू भुले लोगां नू जेड़े असी भुल चुके सा खुदा नू, ते फिर उन्हें अपना बेटे दी जान दी कुर्बानी दे के सानू बचाया, ते सानू वास्ते सब कुछ कीता। और इसलिए वो खुद भी कहते कि राह हक और जिंदगी मैं हूं, और असी ओदी पिछे चलिए तो उस राह हक और जिंदगी दे चल के जिथे हो गया वे, जिथे सानू कह रहे कि मैं जा रहा मकान तैयार कर रहे जगह मैं अपने, तो सानू फिर उत्थे जान लई कोई मुश्किल नहीं होएगी। दूसरे दो शेर होर ने लिखते ने, सुकून कलम मिल जाए खुदाया, क्या बात, सुकून कलम तो हम चाहते हैं, लेकिन खुदा की बातें तो सुकून कलम के लिए, उसका कलाम तो सुकून के लिए, लेकिन उन बातों पर अमल करने से ही हमें सुकून मिलता है। और आप देखें जब भी खुदा के लिए कुछ करते हैं बहुत सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती। कोई बेगम किनारा चाहता हूँ, और ऐसी कोई किनारा चाहता हूँ जहां पर कोई गम ना हो, जहां पर कोई ऐसी मुश्किल मुसीबत ना हो। यकीन रखते नहीं हर दोस्ती पर फक्त एक दोस्त प्यारा चाहता हूं। हम हर दोस्ती पर यकीन नहीं रखते, लेकिन एक दोस्ती चाहता हूं। और अगर हम वो दोस्ती उससे करें जो कहता है कि राह हक और जिंदगी मैं हूं, उससे बड़ा और अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। हम दुनियावी दोस्तियों में पड़े हुए हैं जो हमें राह, जो जिंदगी की राह है, जो खुदाम यीशु मसीह कह रहा है कि राह हक और जिंदगी में हूं, हम उस दोस्ती को देखे, हम दुनियावी दोस्ती को देख के हम पीछे हटते जा रहे हैं। और हमें हर आदमी अपने पीछे लगाने की कोशिश कर रहा है, जबकि खुदा खुद कह रहा है कि राह हक और जिंदगी में, तो कौन बड़ा है, किसका रास्ता बड़ा है? खुदा का रास्ता बड़ा कि इंसानों का या बंदों का या दुनियावी लोगों का? क्योंकि दुनियावी रास्ते ऊपर नहीं जाएंगे, दुनियावी रास्ते, दुनियावी तालीम नीचे जाएगी, जिसको पताल कहते हैं। लेकिन अगर हम उस तालीम पर अमल करते हैं जो राह हक और जिंदगी की तालीम, और वो तालीम है खुदाम यीशु मसीह के, खुदाम यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है और हमारा मनचिए दो आलम है। तो इसलिए दूसरा शेर है जाजम आइजक साहब का, यकीन रखता नहीं हर दोस्ती पर, हमें हर दोस्ती, और यकीन तो खत्म हो चुका है। यकीन आजकल की दोस्ती से, रिश्तेदारी से, एक एक बात से खत्म हो चुका है। हमें सिर्फ एक दोस्त चाहिए, अकेला दोस्त, वो है खुदाम यीशु मसीह। हम जिसकी तालीम पर चलकर, उससे बड़ा दोस्त हमें कोई नहीं मिल सकता। उसके बाद जाजम आइजक साहब की गजल है, तो वो लिख रहे हैं, दिल के हवाल तो लहरों में बहे जाते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ा सीनियर शायर है, कनाडा में है। दिल के हवाल तो लहरों में बहे जाते हैं, लोग बेरहम हैं, लाशों पे चलते जाते हैं। क्या बात है, लोग इतने बेरहम है कि लाशें गिराते हैं और उनके ऊपर चलते जाते हैं। और ये हकीकत है। खुदा की मखलूक को मैं और आप कौन है, किसका दाम है हमारे अंदर? खुदा बाप का दाम है। उसने सबको एक जैसा बनाया था। ये फिरके बंदियां
ये चर्चेज इतने सारे, क्या कर, उसके लिए तो नहीं बनाए थे, उसका तो एक ही था, और वही सबसे आगे नंबर 1 वही चल रहा है। बाकी हम क्यों ये लालच के लिए मजहब को हमने पेशा बना दिया, और जो जो जिसको कोई काम नहीं मिलता, चलो जी 4 बंदे इकट्ठे कर लिए तो चलो चंदा तो मिलेगा ना, और वही गल हो रही है, और वही सियासत में हो रहा है। इसी वजह से लोग बेरहम है, लोग बेरहम है, क्योंकि बेरहम है, इतने बेरहम है, उनको गरीबों से नहीं है, उनको अपनी जेब से, उनका अपने काम चलने चाहिए, उनके घरों में रोटी नहीं, उनके जो हांडी रोटी वो बनती रहनी चाहिए, दूसरे भले भूखे मरते, उनको इस बात से कहे। अगर उनको हमसे सच्ची हमदर्दी है, जो सियासतदान है, जो हमारे रूहानी लीडरान है, अगर उनको भी उतनी हमदर्दी हो, जिसका कलाम सुना कर वो सब कुछ हासिल करते हैं, लेकिन मोहब्बत में उनको क्यों नहीं, उनको भी उतने ही तरजीह देते कि वो भूखे मर रहे हैं, और उनका भी कोई सोचना चाहिए। उसके बाद दूसरे चाहते थे कि गमे दिल से बगावत कर ले, पर बरहमी अपने पे सबर पिए जाते हैं, और हम हर लिहाज से कुछ भी हो, हम सबर से, बर्दाश्त से हर चीज जो है वो करते समझते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उसकी मुंह की बातों पर अमल करें तो हमें बहुत कुछ ये बर्दाश्त करने की, समझने की जरूरत इतनी होगी कि हम खुदा का कलाम समझे। राहत और जिंदगी वो है, हक जल के परवाने खुद प्यार का हजार किया है। परवाने जो शमा पर आशिक होते हैं, तो शमा मासूम पे इल्जाम धरे जाते हैं। हमारे लिए जो सबसे बड़ा रोशनी है वो खुदा यीशु मसीह, और जैसे परवाना रोशनी पर कुर्बान होता है, वो अपनी जान देता है। अब देखते हैं बचपन से, अब तो खैर बल्ब आ गए, लेकिन फिर भी इस रोशनी को देख के जैसे ही लाइट आती, परवाना भाग के उस पे आता है। इसी तरह अगर हम सच्चे परवाने खुदा यीशु मसीह, खुदा बाप और बेटे के सच्चे परवाने बने, तो जैसे उसने हमारी खातर जान दे दी, हम भी उसकी उस क्षमा के ऊपर, परवाने के ऊपर आशिक हों, तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम फिर उस रास्ते पर चल सकते हैं। राज जख्मों का है दर्द, सारी दर्द जख्मों का नहीं, कुर्ब नाशाई का है। जी भी अपने, जो भी अपने थे वो सब गैर हुए जाते हैं। बिल्कुल जो लिख रहे हैं वो झूठ नहीं लिख रहे, और ये बाइबल में सब कुछ दर्ज है, और मैं हवाले जैसे जैसे मिलते मैं पढ़ता भी रहता हूँ कि एक एक बात जो हो रही है इस दुनिया में वो पाकला में दर्ज है और हकीकत है, सच्ची, इससे बड़ी सच्चा आपने जाब्ता याद को नहीं। और जो भी अपने थे अपना खत्म हो गया। हम कहते, मुंह से कहते हैं जो कभी सच था आज वो झूठ हो चुका है, क्योंकि अपने नहीं कोई भी। और इस कोरोना वायरस ने एक एक बात खोल दी है, एक एक बात खुलती जा रही है, ठीक बातें हो रही है, लेकिन साथ साथ एक एक बात जो है वो अया होती जा रही है। तो खुदा करे जैसे ये खत्म होगा दुनिया बदल चुकी होगी, बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ चुकी होगी, और फिर वो बात खुदा की बात है, वो उस पर अमल करना पड़ेगा हमें कि राह हक और जिंदगी मैं हूं। एक रिक्वेस्ट मैं अक्सर करता हूं, मैं जब शो करता हूं बार बार मुझे मैसेज करते हैं प्लीज, क्योंकि मैं फिर डिस्टर्ब भी होता हूं और मेरा मैसेज भी, और कई बार मेरा मैसेज टूट जाता है रास्ते में। तो इसलिए जब भी मैसेज करें, मेरे शो के बात करें, जो भी आपको मैसेज करना है। तो इसलिए हमें जो दर्द जख्मों के हैं वो इसी वजह से कि हमारे जो जानने वाले जीज और कारब सब बदल चुके हैं। बेकसी ने हमें जाजम राह मुतल दे दी है, वो जो मुजरम थे शरीफों में शामिल हो गए। क्या बात है, क्या बात है। आज ही आप भी देखते होंगे कि खबरों में इतना बड़ा क्या वो जो
और जियो का क्या, शकील क्या नाम है उसका, अमीर शकील, तो जब उसको जेल हुई तो वो कांपना शुरू हो गया। और बड़े बड़े जो, हमारी तो यही प्रॉब्लम है कि हम झूठे को नहीं देखते, हम शरीफ उसको समझते जो अमीर, और उन्होंने सिफारिश करके उसको अस्पताल पहुंचा दिया, जैसे नवाज शरीफ को लंदन पहुंचा दिया। ये हमारे शरीफ लोगों का काम है जिनको हम शरीफ कहते हैं। और वो शरीफ कौन है? सबसे ज्यादा बदमाश। क्योंकि हमारे मुल्क में जो जेड़ी गल कहते हैं कि लुच्चा सारे तो उच्चा, ये साडे मुल्क च गल पक्की 100% इससे गल ते वो सच्ची गल है कि ਅਸੀਂ ਲੁੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ। ਲੇਕਿਨ खुदा जानता कि सच्चा कौन है, झूठा। इसलिए वो कहता कि राह हक और जिंदगी में हूं और मेरी तालीम सच्ची और हकीकी है। उसके बाद खादम खोखर का एक बहुत अच्छा शेर, खुदा करे ताउम्र तुझे मेरी कमी रहे। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी। खुदा करे ताउम्र तुझे मेरी कमी रहे, खुदा करे तेरी उम्र दराज हो। और ये बिल्कुल हम ये शेर, ये ऐसी बातें उनको कहते हैं जो हमारे प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। और सबसे प्यारे जो हमारे बहन भाई, जो सके बहन भाई, जो बच्चे हैं, हम उनको लिए खुद वक्त दुआ करते कि दराज ये उम्र, खुदा आपको दराज ये उम्र दे। और वो हकीकत में ठीक बात है कि खुदा करे तेरी उम्र दराज हो, और खुदा करे मेरे सुनने वालों की, मेरे चाहने वालों की, मेरे जो कमेंट्स देने वाले की, मुझे पसंद करने वालों की, मेरा शो देखने वालों की, खुदा आप सबकी उम्र दराज करे और इस कोरोना वायरस से आपको हमेशा महफूज रखे, बल्कि सारी दुनिया को महफूज रखे, ताकि ये जो बीमारी या वबा या जो भी है, खुदा इसको जल्द से जल्द खत्म करे। और सिवाय उसके कि जो राह और हक और जिंदगी है, उसके अलावा कोई नहीं इसको खत्म कर सकता। उसके बाद जोसेफ करामत की एक पोस्ट है, मजहब ते फिरके सोच दे हो गए ने पंजाबी, लेकिन बहुत खरी गल लिखी, बहुत खरी गल ते सच्ची ते अच्छी गल लिखी है। मजहब ते फिरके सोच दे हो गए ने, खुदा वाली गल को नहीं, अपनी सोच दे नाल असी मजहब नूं चला रहे कि जो कुछ मैं कहना वा वो मनो, लेकिन जो कहंदा कि राह हक और जिंदगी मैं हूं ओनू छड्ड दिओ, मेरी मनो। लेकिन असी दुनियादारी ते तो उन्हां दी गल मान लांगे, लेकिन जदों फैसले होणगे फिर सानू देखना पेगा कि सानू वो कित्थे सुटदा है, किहड़ी जगह ते। उत्थे जिथे वो कह रहे कि मैं अपने प्यो दे घर जाने ते तुहाडे लई भी जगह बनावांगा, फिर सानू ये देखना पेगा कि असी क्यों इन्हां सोचां च पैण डए आ। अधमूवे जेड़े अधमूवे, अद्धे ना बेहोश ना, तो अधमूवे खोज ते हो गए लड़ लड़ के, अधमूवे हुंदे जांदे। सच्ची गल है, मैं कहंदे मैं नहीं डरदा। और हकीकत है, सारा दिन बाइबल पढ़दे ने, तो उस बाइबल नूं पढ़न दा फायदा सिर्फ तुहानू हो सकदा, मैनू नहीं हो सकदा। मैनू बाइबल पढ़न दा फायदा तद होवेगा जे मैं आप ही इस बाइबल नूं पढ़ा, इनू समझा, खुदा दियां गल्लां नूं समझा, और वो गल्लां समझा जेड़ा कह रहा कि राह हक और जिंदगी मैं। असी खुद सानू पढ़ना, क्यों असी पागल हो रहे, सारी दुनिया नूं मजहब पिछे पागल करी जान दे। होश जे हो गए, पता नहीं केड़ी फौज दे हो गए ने, ये केड़ी फौज दे, खुदा दी फौज दे ते नहीं, खुदा दी फौज दे ते बड़े सच्चे ते वो सच्चे फर्जंद ते सच्चे खादम हुंदे ने। आजकल सिर्फ दौलत दे खादम ने, सच्चाई दे खादम को नहीं। मैनू जेड़ी सच्ची गल तो कहन तो मैं नहीं, और सच्चाई दे कहण वाले नूं लोकी सूली ते ही चढ़दे ने। सूली ते खैर कोई बंदा चढ़ सके जिन्हें चढ़ना सी, सूली चो कि उन्होंने मुश्किलां च ही पांदे रहिंदे ने। झूठे वेख लो जेलां चो भी छुड़ जांदे ने, अदालतां चो भी छुड़ जांदे ने, किते दा किते पहुंचा, क्योंकि वो झूठे लोक हुंदे। लेकिन जेड़ी आखिरी अदालत होनी, जेड़ी राह हक और जिंदगी दी अदालत होनी, उस अदालत तो नहीं छुड़ सकते। सैमन सोत्रा दा छोटा जिहा पोस्ट है, मुमकिन है बहुत बुरा हूं
बिल्कुल मैं कहता हूँ मुमकिन हूँ, बहुत बुरा हूँ, लेकिन दो चेहरे नहीं रखता हूँ, एक ही चेहरा रखता हूँ, सच्ची और अच्छी बातों का। और यही मेरा शव है, और ये मेरी बोलने की कुव्वत, सुनने की कुव्वत, मेरी सांस जब तक खुदा मुझे ये तौफीक देगा, दो चेहरे नहीं लगाऊंगा, एक ही चेहरा जो खुदा ने मुझे दिया है। जो भी है, दूसरे एक चेहरे पर दो चेहरे सजा लेते हैं लोग, वो नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। और ये हक की बातें, सच की बातें कहता ही रहूंगा, मुझे भले कोई भी सजा मिले, लेकिन मुझे जो सजा मिलनी है वो ऊपर जाके मिलनी है, और मेरे किरदार पर मिलनी है कि मेरा दुनियावी किरदार क्या था। बहुत खूब। उसके बाद डैनियल आरफ चौधरी की, कोई खास ना रही और हसरतें भी मिट गई, वाह जिंदगी तूने मुझे बेमिसाल कर दिया। और बेमिसाल उसी वक्त होते हैं कि जब आप जिंदगी की सारी हसरतें पूरी कर लेते, जिंदगी की सारी किताबें पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकली भी वैसे भी, तो फिर जिंदगी ने मुझे बेमिसाल, फिर आप बेमिसाल बनते। लेकिन बेमिसाल उस वक्त बनते हैं कि अगर हम ये सोचे कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, अगर हम उसकी बातों पर अमल करें तो खुदा हमें जरूर सीधी रास्ते रखेगा। रॉबिन्सन रोबी की, उम्र भर वो बस हमारी खामियां ही गिनते रहे, और ये से बात है कि हम दूसरों की खामियां गिनते हैं, पाक कलाम भी पढ़ते हैं, और मैंने खुद बातें जिनके साथ मैंने काम किया चर्चिस के हवाले से, दूसरों की बुराइयां ही सुनते देखा। और यही हो रहा है कि जो आपके साथ है उसकी तारीफें, जो आपके साथ नहीं, तो फिर ये किस चीज का खुदा का कलाम है? हम दूसरों की बुराइयां क्यों करते हैं? कोई खास ना रही, कोई जब हसरत सारी उम्र भर वही बस हमारी खामियां गिनते रहे, हम भी आगे बढ़ गए सीढ़ियां गिनते गिनते। और जो बिल्कुल आप खामियां गिनते, अगर आप सीधे रास्ते पर जा रहे हैं, खुदा के रास्ते पर, कोई भी जो अच्छा और सस्ता, आप चलते जाओ, सीढ़ियां जो कदम गिनते हैं वो नीचे ही रहेंगे, क्योंकि वो कोशिश नहीं करते, वो शैतान की बातों पर अमल करके हमारी मुखालफत करते हैं। उसके बाद एरिक गेल साहब मेरे दोस्त हैं मैरीलैंड में, उन्होंने लिखा, मैं खता ही खता हूं, बिल्कुल मैं खता ही खुदा हूं, तू अताईता। हम बिल्कुल खताएं करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन वो गलतियां माफ करके हमें सब कुछ देता रहता है। करूं तो कैसे करूं, करूं तो कैसे करूं, मेरे मालिक तेरा शुक्रिया अदा मेरे मालिक मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं, मैं तो गुनाहगार, गुनाह करता ही रहता, लेकिन तेरी मेहरबानियां इतनी है कि मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं करता। एक बहुत खूबसूरत चीज जो लिखी कलाम, जो गजल के या नज़म के हवाले से बिशारत गिल साहब जो हॉलैंड में है, तो उन्होंने लिखा है, चिरागो हौसला रखना। वो चिराग कौन, मैं अभी बताता हूँ। चिरागो हौसला रखना, हवाएं हार जाएंगी। और वो चिराग कौन है? वो हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सें, हमारे वार्ड बॉय, हमारे सफाइयां करने वाले, हमारे कितना अमला है जो इतनी, मुझे ठीक अब तो वबा आ गई, लेकिन उससे पहले भी ये बहुत खिदमत का काम जो लोग करते हैं, उनको उसने सलाम किया है, और मैं भी उन सबको सलाम करता हूं, क्योंकि जितनी बड़ी खिदमत वो कर रहे हैं, और इस खिदमत में वो मर भी रहे हैं। और ये वो लिखते हैं, सलाम उनको जो मुश्किल हाल में देते हैं, सलाम उनको जो मुश्किल हाल में देते हैं, सलाम उनको मुखालफे वक्त को मात देते हैं, उनको सलाम जो मुश्किल हालात में, जो मुश्किल हालात, अभी दुनिया सारी पे मुश्किल हालात हैं, और वो हालात क्या है, जो कोरोना की वजह से अस्पतालों में लोगों की खिदमत करते हैं, उनको सलाम पेश कर रहे हैं। सलाम उनको जो हंसते हैं, सहारा सहारा दे बेसहारों का, उनको सलाम जो बेसहारों को सहारा दे रहे, जो कि ये एक ऐसा मर्ज है कि जिसको लग जाता है उसके सहारा कोई सहारा नहीं साथ, इवन
وہ خدا کو प्यारा भी हो जाता है। तो लोग इतने डरे हुए हैं कि लोग अपने अजीजों की प्यारों की लाशें भी नहीं लेते, चूंकि उनको खतरा इतना है कि फिर उसको, और ना उनको कोई खास जगह जहां से ना उसका कोई जनाजा, तो इसलिए उनको सलाम, जो वो इन सारे बेसहारा लोगों को सलाम दे रहे हैं। सलाम उनको जो हंसते हैं, सहारा बेसहारों का, सलाम उनको लर्जाने वालों को जो जो बात देते हैं, सलाम उनको भी जो हंसते हैं, सभी बेटी बेटियां उनको सलाम, जो बेटे बेटियां, हमारी कौम के बेटे बेटियां भी इस खिदमत में, पाकिस्तान की फौज में भी, हर जगह पे इस खिदमत में बहुत ज्यादा है। और खुदा उनको बरकत दे, महफूज रखे और अपनी खिदमत और जारी और सारी रखे। डटे हैं जो क़यामत की घड़ी में मौत के आगे, और वो जो इस क़यामत की घड़ी में वो मौत के आगे डटे हुए हैं, वो लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से, ताकि हमारे लोग जहां जहां भी है वो जिंदा रहे। अजल जिसे नहीं देखती कोरोना भी नहीं देखता, और जिसको अजल नहीं देखता, अजल मौत आखिरी जिंदगी, अजल जिसे नहीं देखती दुख देखती कोरोना भी नहीं देखता। सलाम उनको जो दुखते हुए दुश्मन से ना भागे, और जिनको कोरोना इस मतलब तो यह है कि उनको कोरोना नहीं देखता, लेकिन उनको दिखता है कि मैंने जाने बचानी है। वो कोरोना को नहीं देख रहे, इंसानियत को देख रहे, इंसानों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर। बहुत खूबसूरत लिखा है वारिस गिल साहब, आप बिशारत गिल साहब आपने, जो होकर कहीं अपने अम्मा या बाबा की दुआएं जो हुए हैं, सलाम उनको दिन रात लड़ते हैं वबाओं से, जो होकर लेस अपने अम्मा बाबा की दुआओं से। बहुत खूबसूरत। और बिल्कुल हम घरों में जब आम बात भी है, निकलते हैं तो कहते बाबा या पापा चाचा जो भी मेरे लिए दुआ करो, और जब जाहिर है कि उनके माँ बाप उनको दुआएं देते हैं, घर से निकलते हैं या अस्पताल उनको दुआएं देते, दुआ सबसे बड़ा हथियार है, और हम समझते हैं, करते भी है, और वो दुआओं से लेस होकर उन मरीजों के साथ काम करते हैं जो उलझे पड़ते हैं, जो उलझ पड़ते हैं फिर मौजी और मोहलक हवा से, और वो इनसे लड़ते हैं, इस मोहलक मरसों से, हवाओं से, वबाओं से, बीमारियों से। सलाम उनको जफा को जो हराते हैं वफा, उस दुश्मन को जफा बेवफाई और उस दुश्मन के हरा देते हैं इस खिदमत की वजह से, सच्चे दिल से। और मैं समझता हूँ कि ये लोग खुदा की खिदमत, खुदा की मखलूक की भी खिदमत करते हैं, और वो इस बात पर अमल करते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, क्योंकि ये इंसानियत की खिदमत करते हैं। गंदे से गंदा मरीज भी हो वो उसके लिए वो काम करते हैं, और इससे बड़ा तो खतरा है ही नहीं दुनिया में। अभी तक मैंने अपनी इसमें बड़ी बीमारियां, टीबी है, कैंसर है, क्या कुछ नहीं, लेकिन ये एक ऐसी वबा ये कि जिसका अभी तक कोई दवाई नहीं बन रही, कोई वैक्सीन नहीं। टीबी को भी खत्म कर दिया इंसान ने, मतलब वो लालाज थी, लेकिन उसका कैंसर भी काफी हद तक उन्होंने कर लिया, लेकिन इसका अभी तक कोई इलाज नहीं नजर आ रहा। सलाम उनको जो जफा, और सलाम उनको जो इस मुश्किल वक्त में इन बीमारियों का मुकाबला करके उनको हरा देते हैं। उसके बाद एक और पोस्ट है, अज़ाइम जीत जाएंगी, वबाएं सारी उनका बन दिया, अज़ाइम जीत जाएंगी, वबाएं हार जाएंगी, यकीन मोकम के आगे सब बलाएं। जो अज़ाइम है, जो हमारी अज़ाइम है, हम अगर मेहनत कर रहे हैं अपनी जो भी किसी भी तरीके से, तो अगर हमारे अज़ाइम अच्छे हैं, हमारे ख्याल अच्छे हैं, तो वबाएं हार जाएगी, ये कोरोना हार जाएगा, यकीन मोकम के आगे। अगर हमारा पुख्ता यकीन है तो ये बुलाएं बिल्कुल हार जाएंगी। कोरोना
कोरोना जैसे जरासीम, कोरोना जैसे जरासीम बहुत देखे हैं माजी में, बिल्कुल अभी जैसे में कि माजी में बड़ी बड़ी बीमारियां देखी हैं। चिरागो हौसला रखना, हवाएं हार जाएंगी। क्या बात है बिशारत साहब, खुदा आपको बहुत सलामत रखे। और मैं भी आपके सामने उन सबको, नर्सों को, डॉक्टरों को जो ये खिदमत कर रहे हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। उनके लिए भी आप दुआ करें कि खुदावंद उनकी हिफाजत और निगहबानी करे, और अपनी खिदमत में जो वो बेलौस खिदमत कर रहे हैं, जिसमें डर खौफ नहीं महसूस कर रहे, वो इसी तरह खिदमत करे और इंसानियत की और इंसानों की जिंदगियां बचाने के लिए वो तो कर ही रहे थे। अभी ये खिदमत बहुत मुश्किल आ गई। खुदा उनको सही सलामत रखे। और आखिर में मेरे दोस्त एरिक गिल साहब, उन्होंने लिखा है बहुत अच्छी पंजाबी, मिठा मेवा बेरी देवे, बेरी जिथे बेर लगते ने, मिठा मेवी बेरी, मिठा मेवा बेरी देवे, फिर भी वट्टे खावे। और बिल्कुल अपने हथ ना काम किया कि बेरी नू ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੇਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਚਲੋ ਵੀ ਬੇਰ ਲਾਈਏ, ਜੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਵੱਟੇ ਤੋਂ ਮਰਾਤੇ ਹੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਬੇਰੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਸਬਰ, ਸਬਰ बेरी दा वेखो नेकियां कर दी जावे, और सबर बेरी दा वेखो किन्ना सबर कि वट्टे भी खान दईए, मिठे बेर भी दे जाती है। और बेर ते इस मौसम च ते खैर पाकिस्तान च बाजारां च भी मिलते ने, सेब बेर, छोटे बेर, काठे बेर, कई किस्म के बेर हुंदे ने। और ये बेरी जेड़े घर बेरी हुंदी उत्ते वट्टे वजदे, और जेड़े लोग भलाई दे काम करदे ने उन्हां नूं गल्लां सुननियां ही पैंदियां ने, उन्हां नूं वट्टे वजदे ही रहिंदे ने। लेकिन अगर हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि जिंदगी बनाने के लिए यकीन मोहकम, तो हम अमल से जिंदगी बनती है। अगर हम इस बात पर, इलामा इकबाल का शेर बहुत खूबसूरत, अमल से जिंदगी बनती है जहन्नम भी जहन्नम, ये अमल हमारे जो हैं इसी से हमने जहन्नम में भी जाना है और जन्नत में भी जाना, क्योंकि ये हमारे अमलों से ही होगा। लेकिन हम अगर इस बात पर अमल करते हैं कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, और हम पूरे सच्चे दिल से सिर्फ खुदा पर ध्यान दें, खुदा के खिलाफ पर ध्यान दें, दुनियावी बातों, दुनियावी ख्यालों को ना ध्यान दें, खुदा की बातों पर अमल करें। खुदा इसको खुद पढ़ें, खुद देखें कि जो कोई कह रहा है वो ठीक है गलत है, जो, लेकिन खुद इसको पढ़ें और इसकी बातों पर अमल करें। तो जो आज मैंने हवाला पढ़ा था यूहन्ना की अंजील, उसका 14 बाब, उसकी 3 आयत से 7 आयत तक पढ़ूंगा। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा जहां मैं हूं। अगर मैं जाकर, अभी 40 दिन के बाद वो चला जाएगा और वो हमारे लिए जगह तैयार करे, कि मैं जाकर जगह तैयार करूंगा, मैं वापस आकर आपको भी ले लूंगा। लेकिन किनको लेगा? जो उसकी राह पर चलते हैं, जो उसकी बातों पर अमल करते, जो राह और जिंदगी की बातों को मानते, वो उनको लेगा, हर किसी को नहीं। जो इस काबिल हैं, जो उसकी तालीम पर अमल करते हैं। तो जहां मैं हूं तुम पर हो, जहां मैं जाता तुम वहां की राह जानते हो। उसने कहा कि तुम राह जानते हो, लेकिन थोमा कह रहा है, थोमा ने उससे कहा है खुदा हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है। और बिल्कुल ठीक बात है, इंसानों को उस वक्त तक नहीं पता था, जो गले उसके शागिर्द थे, उसके साथ थे, उनको वाकई नहीं पता था ये क्या कह, वो उनके साथ भी तो उनकी बातों को उनको समझ नहीं आती थी। लेकिन जब वो चला गया और उनको रूह पाक की कुव्वत मिल गई, तो फिर हर चीज उन पर खुली और यहाँ हो गई। तो थोमा ने कहा कि उसने कहा ऐ खुदा हम नहीं जानते तू कहाँ जाता।
फिर राह फिर किस तरह हम जानेंगे, किस तरह जानेंगे कि तू कहाँ जाता है? यीशु ने उनसे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। और बिल्कुल उसके वसीले से हम दुआ भी मांगते हैं तो खुदा से कहते हैं, खुदा बाप तू अपने बेटे के वसीले से हमारी दुआओं को सुन कबूल कर, अपने बेटे के वसीले से इस कोरोना को खत्म कर, अपने बेटे के वसीले से मुझे, मेरे अजीजों का, रब की, मेरे दोस्तों की, मेरी मसीही कौम को इस मौजी मरद हम जो भी दुआ करते हैं उसके वसीले से दुआ करते हैं। और आज भी हम दुआ करें कि खुदा बाप जी तू अपने बेटे का पाखून हमारे घरों के चौखटों पर लगा दे, हमारी कौम के, हमारे मुल्क के यूएसए पर छिड़क दे कि जहां दुनिया से सबसे ज्यादा कोरोना वायरस असर कर ले, तो कुल आलम के लिए तू अपने बेटे के वसीले से इस कोरोना वायरस को यीशु नाम से ठीक कर दे। ये मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखे, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।